Hello everyone. I welcome you all once again in today's video. Today I am going to explain you one of the best chapter from class 10 first flight book say. And the name of the chapter is The Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Already I have explained part 1 and now I am going to explain you part 2 about the following chapter. A few moments later, we all lifted our eyes in the awe-inspectacular array of South African jets. Helicopter and troops carrier roar in perfect formation over the Union building. Here Nelson Mandela says, we all lifted our eyes in the sky and saw the South African jets, helicopter and troops carrier roar in perfect Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to a democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये एक प्रकार का डिस्प्ले नहीं था और उस डिस्प्ले के अंदर पिन पॉइंट प्रिसिशन को सौंप किया गया था ऐसे मिलिट्री फोर्स को, लेकिन यहाँ पे उस डेमोस्ट्रेशन, उस मिलिट्री लॉयल्टी को सौंप किया गया था एक ऐसी गवर्नमेंट जो न्यूली फॉर्म्ड हुई थी. द गवर्नमेंट हैड बीन फ्रेली एंड फेयरली इलेक्टेड. Only moment before the highest general of South African Defence Force and Police, their chest budget with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their royalty. कुछ मोमेंट के बाद अफ्रीका का जो डिफेंस फोर्स था and along with the general and police department, they are pasting the badges and ribbon with medals. After that, they are saluting to the Nelson Mandela because Nelson Mandela was the first black president was elected in the newly government, and they are showing the loyalty to the Nelson Mandela. It was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. उस फैक्ट के बारे में भी बता रहा है कि कुछ साल पहले नेल्सन मंडेला and along with his companion they put in the jail also. In that time they are not saluted, only they arrested. Okay, in this task he was showing the ungrateful point. Finally, a chevron of Impala jets left the smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of New South African flag. तो फाइनली वहां पे एक चौरन इम्पाला जेट्स था, उसने स्मोक को स्टार्ट कर दिया था और ऐसे स्मोक को उसने स्टार्ट किया था जिसमें न्यूली साउथ अफ्रीकन फ्लैग था और उसके अंदर ये सब कलर हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, that they are making the South African national flag smoke. The day was symbolized for me by the playing of two national anthem and the vision of white singing Nikose, Sikle, I Africa and black singing Die Stim, the old anthem of Republic. उन्होंने कहा कि जो डे था, जो इनाग्रेशन जो डे था ऑन 1 मई 1994 का, जो डे था बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट माना जाता था. तो उस दिन साउथ अफ्रीकन की सोइल में दो नेशनल एंथम को प्ले किया गया. व्हाइट लोग गाते थे निकोसे सिकले डाई अफ्रीका, जबकि ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथम था वो था डाई स्टीम.
और ये एक ओल्ड नेशनल एंथम था ऑफ द रिपब्लिक का. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they were displeased they would soon know by the words. जब 10th मई 1994 का जो डे था उस दिन दो नेशनल एंथम को प्ले किया गया. व्हाइट लोगों का जो नेशनल एंथम था निको से सिकले आए अफ्रीका, जबकि ब्लैक लोगों का था डाइस टीम. उस दोनों ही नेशनल एंथम को प्ले किया गया. लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे, नादर चिल्ड्रंस नाए नोटे white people, they knew about the lyrics of the national anthem, but they are trying to learn by words, by their hearts. On the day of inauguration, I was overwhelmed with the census history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched with their differences and erected the system of racial dominations against the dark-skinned people of their own land. Here, Nelson Mandela says on the day of inauguration, then Nelson Mandela gave a deep history about the African history के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में a few years before war was fought, a Anglo war before my own birth. In that war में जितने भी जो व्हाइट सुप्रीमेसी थे, व्हाइट स्किन कलर के जितने भी लोग थे, वो साउथ अफ्रीका के जितने भी लोगों के से डिफरेंसेस करते थे. एंड दे इरेक्टेड ए सोशल system. That system is called Afati. Afati is a political system that created and differentiate between the caste, creed, and color. So, Afati is one of them in prevail in Africa in those days. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. अफाती जो सिस्टम उन लोगों ने क्रिएट किया था व्हाइट स्किन पीपल्स ऑन साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों के ऊपर, जो स्ट्रक्चर था इतना ज्यादा इनह्यूमन था, इतना ज्यादा हार्श था कि आज तो कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता. जिन लोगों ने फेस किया, जिन लोगों के ऊपर ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया, उन्हीं लोगों को ये पता है कि अफाती क्या चीज है. Now, in the last decade of 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been. उन्होंने कहा कि लगभग अब मैं खुद लगभग 8th डेकेड में एंटर कर चुका हूं. एंड द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी. Overturned forever and replaced by one that recognizes the right and freedom of all people regardless of the color of their skin. यदि उनके जितने भी जो राइट्स थे, उनके जितने भी जो फ्रीडम थे, उन सभी ब्लैक लोगों को लेकर उनसे छीन लिया जाता था बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड देयर स्किन. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन्होंने कहा कि जो आज़ादी, जो न्यूली बोर्न लिबर्टी आप देख रहे हो आज, आज के दिन जो डे था 10th मई 1994 का, अनऑस्पिशियस मोमेंट में,
उन्होंने कहा कि जो न्यूली बोर्न लिबर्टी आप देख रहे हो अभी, ये अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस को फेस करने के बाद हम लोगों को मिली है। उन लोगों की जो सफरिंग्स हैं, उन लोगों की करेज को हम कभी भी रिपे नहीं कर सकते और ना ही कभी उनको काउंट कर सकते हैं। ये सब अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस है with thousands of peoples, the people of South Africa. दैट मीन्स यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने उन सभी पेट्रियोटिज्म को अपने आप को श्रद्धांजलि उसने पे किया। I felt that day as I have so many others day that I have simply the sum of all the Africans patriot who had gone before me. तो नरसिम्हा मंडेला ने अपने उस हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर दिया, अपने कंपानियन के बारे में, कहाँ और कैसे उन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। दे फोर्ट अगेंस्ट द लाइफ टाइम ऑफ हाथी। उस मोमेंट के लिए उन्होंने कितने सारे पेट्रियोटिज्म को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया फॉर देयर सफरिंग्स एंड देयर करेज। उन सभी के बारे में नेल्सन मंडेला विथ डीपली के साथ उन सभी के बारे में बताना चाहता है। उन्होंने सोचा कि यही एक स्पेशल मोमेंट है कि मैं उन सभी के बारे में विथ फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं उनके हीरोइक टास्क के बारे में। That long and noble line ended with me, now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what sacrifices had wrought. उन्होंने कहा कि they started with me this moment for their country and this noble land ended with me, and after that, after getting of independence, this land again began with me only. मुझे इन सभी बातों को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि मुझे दुःख हो इस बात का होता है क्योंकि मैं उन लोगों को मैं थैंक यू भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और ना ही वो लोग देख सकते हैं उस सैक्रिफाइसेस को, उनकी सैक्रिफाइसेस ने क्या रंग लाई है। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया था, उनकी आज़ादी कहाँ पे आकर उनको मिली है, ये देखने के लिए भी लोग जिंदा नहीं है। The policy of Fafati created a deep and lasting wound in my country and my people. तो सिंपली एक बार समझ लेते हैं अफाती क्या है। अफाती एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को सेपरेट करने का काम करता है उनके जाति, उनके कलर और उनके क्रीड के बेसिस पे। और यही अफ्रीका में, अफ्रीका के लोगों के लिए, अफ्रीका के कंट्री में बहुत ही डीप वुंड के रूप में क्रिएट किया है द पीपल ऑफ अफ्रीका। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हर कोई व्यक्ति many years तक they want to spend their lifetime. If generation after generation, if they are not recovering from this profound, that might be hurt because we are not paying their simplicity. तो नेल्सन मंडेला ने अपने उन सभी पेट्रियोटिज्म के नाम यहाँ पे बताना चाहते हैं, उन सभी देशभक्तों के नाम बताना चाहते हैं जिन्होंने उनके साथ उस मोमेंट के लिए स्टार्ट किया था। उन्होंने अफाती के लिए उन्होंने लड़ाई किया था। उनमें से कुछ नेम हैं। उनमें से सबसे पहला जो नाम है वो है ओलिवर थाम्बो, वॉटर सिसलू, चिप लुथलिस एंड यूसुफ ददाउस एंड बैरन फिशर एंड रॉबर्ट सोबोकेव। ये उस समय के उनके ट्रू पेट्रियोटिज्म थे जिन्होंने फोर्ट किया था नेल्सन मंडेला के साथ, लेकिन वो उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर वेल बीइंग ऑफ देयर कंट्री। You can see the picture of Oliver Thamdo, Walter Sisulu, Chip Luthlis। ओके, ये सभी ट्रू पेट्रियोटिज्म थे इन दोज टाइम में जब नेल्सन मंडेला एंड अदर कंपनी दे आर फाइटिंग विद द पार्टी।
courage, wisdom, and generosity that there like many never be known. नेल्सन मंडेला ने कहा कि करेज, विजडम और जेनरोसिटी क्या होती है, ये कोई भी नहीं जान सकता. नो वन कैन नो about what is courage, freedom, and generosity. We have to understand, we have to know the generosity of by simply understanding by sacrifices what they have made. उन्होंने कहा कि जो करेज क्या होता है, विजडम क्या होता है और जनरसिटी क्या होती है, वी हाउ टू नो थ्रू दिस पर्सन्स. उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उनका जो विजडम था, उन्होंने उस करेज को कैसे फेस किया, यही उन्होंने बताया है. Perhaps it's required such a depth of operation to create such a heights of character. करेज क्या होता है, विजडम क्या होता है, जनरसिटी क्या होता है, शायद हमें ये रिक्वायर होना चाहिए, हमें जानना चाहिए. जब कोई व्यक्ति विथ डीपली के साथ इस चीज को बिल्डअप करता है, उसके कैरेक्टर को, या उस चीज को फेस करने के बाद यही ऐसा व्यक्ति बन सकता है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that the greatest wealth is people, finer and true than the purest diamond. उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में मिनरल्स, जेम्स, वो सब कुछ लाए है बीनीथ द सॉइल में, लेकिन ट्रू एंड फाइनर जो पेट्रियोटिज्म है, जो ट्रू डायमंड है, वो है उनके ट्रू पेट्रियोटिज्म, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया. और नेल्सन मंडेला ने ही इनको इंडिकेट किया है ट्रू एंड प्योर डायमंड्स. It is form of this comrade in the struggle that I have learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for ideas. उन्होंने कहा कि जब उनके जो कंपानियन थे, उनके जो कैमरेड थे, उनको स्ट्रगल करने के लिए उनको किसी प्रिजन के अंदर डाला गया, तो करेज क्या होता है, दे लर्न द मीनिंग फ्रॉम देयर सेल्फ, जब उनको जेल में डाला गया. And now they learn the meaning of their courage. Time and again, I have seen men and women risk their give their lives for ideas. उन्होंने कहा कि समय और लोगों को मैंने देखा है, इनमें चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, हर कोई अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है फॉर वेल बीइंग ऑफ देयर न्यूज आइडियाज. I have seen men stand up to the attack and torture without breaking, showing the strength and resistance that defies the imaginations. मैंने बहुत से लोगों को खड़े होते हुए देखा है, और तब तक लोग उनको टॉर्चर करते हैं जब तक वो कंप्लीटली टूट नहीं जाता है. उनकी स्ट्रेंथ, उनकी रेसिस्टेंसी कोई भी इमेजिनेशन नहीं कर सकता है. I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अबाउट करेज के बारे में. ऐसा नहीं था कि हम लोगों के अंदर भी फियर नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम लोग बिना निठल्ले डरपोक हैं, लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था, वी डिटरमाइन अवर सेल्फ टू टिल गेन द पावर एंड ट्रायम्फ ओवर इट. साहसी व्यक्ति वो नहीं होता है जो डरता नहीं है, साहसी व्यक्ति वो होता है जो उस डर के ऊपर अपने आप को विजय हासिल करता है.
नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस स्किन, हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन्स। तो नरसिम्हा ने बहुत ही सिंपली, बहुत ही ट्रू लाइन यहाँ पे कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नफरत करने के लिए बोर्न नहीं होता है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड को फॉलो क्यों ना करता हो, चाहे वो किसी भी धर्म को क्यों नहीं मानता हो, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। People must learn to hate if they can learn to hate. They can taught by love, for comes from naturally to the human heart than its opposite. तो उन्होंने कहा कि यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार एक नेचुरली हर ह्यूमन बीइंग के हार्ट में आता है। ये नफरत का अपोजिट है लव। उन्होंने बहुत ही सिंपली, बहुत ही प्योर लाइन उसने कहा। दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सिखाता है नफरत करना। यदि व्यक्ति नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है, क्योंकि जो प्यार होता है वो नेचुरली हर ह्यूमन बीइंग के हार्ट से निकलता है, और ये अपोजिट होता है नफरत के। इवन द grimmest times in prison, my comrade and I were pushed in our limits. I would see a glimpse of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. उन्होंने कहा कि जब हम जितने भी कंपानियन थे, हमारे जब उन सभी कैमरेड के साथ, और वो हम लोगों को उस जेल के अंदर पुस्ट किया गया इन ओवर लिमिट्स में, तो मैंने वन ऑफ द गार्ड्स में उस ह्यूमैनिटी को झलक देखी थी मैंने। उन्होंने नरसिम्हा ने कहा कि जब और मेरे कंपानियन को हमको प्रिजन में डाला गया, तो मैंने एक गार्ड के अंदर उस झलक को देखा है जो शो अप कर रही थी ह्यूमैनिटी को, और यही चीज हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने आप को रिश्योर करने के लिए मोटिवेट करती थी। Man's goodness is flame that can be hidden but never existence extinguished। तो यहाँ पे कहा कि जो ह्यूमन की जो गुडनेसेस है, जो अच्छाइयाँ हैं, एक फ्लेम की तरह होती हैं। उसको छुपा तो सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको बुझा नहीं सकते। तो नल से मनल ने कहा कि ये मनुष्य की अच्छाइयाँ होती हैं, एक फ्लेम की तरह, एक ज्वाला की तरह होती है। उसको छुपा ज़रूर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं। So this is the end of second part